Hello, good morning, students. How are you all? I hope all are good. And students, today we are going to start our new chapter, Human Capital Formation in India. So before that, I need your comments in the comment section of this video. Have you prepared notes till chapter number 7 or not? If you have prepared, write yes. Otherwise, write no along with your SR number. Okay. And second thing, if you have submitted your all the documents for the registration, it's okay. If still now, if you have not submitted your documents for registration, so very soon as it possible, before 15th, submit your documents in the school for registration along with your registration fee. Okay, so today we will study about the concept of human capital and what is the process of human capital formation and all the things. Okay, so see, what is human capital? Human capital refers to the stock of skill or expertise of a nation at a point of time. मतलब कि हमारे देश में या किसी भी देश में जो भी लोगों के अंदर स्किल है, एक्सपर्टाइज है, उसका जो स्टॉक है, दैट विल कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल. इट इज़ द सम टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ इंजीनियर, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स एंड वर्कर्स ऑफ ऑल टाइप हु आर इंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. मतलब जितने भी लोग प्रोडक्शन के प्रोसेस में बेटा इंगेज्ड हैं. ओके, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को. उन सभी का जो स्टॉक है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री हु आर परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सो द समेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स विल बी टर्म्ड एज ह्यूमन कैपिटल. सो नोट डाउन ऑन आवर कॉपी, हेडिंग नोट करिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल नोट करिए. ह्यूमन कैपिटल refers to the stock of skill and expertise of a nation at a point of time. Okay, noted. Is it clear? And one more example, like farmers working in India. तो जितने भी फार्मर्स हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो दे ऑल आर आल्सो द पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, अगर कोई एक डेली वर्कर काम कर रहा है तो वो भी क्या है, आपका ह्यूमन कैपिटल का पार्ट है. ओके, सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम. अब जो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, उसके साथ साथ ह्यूमन कैपिटल को ऐड करना क्या कहलाएगा, जो प्रोसेस है, दैट विल कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. If human capital stock of a nation consists of 10,000 skilled workers at the beginning of 2018, and if the beginning 2019 it increases to 12,000 skilled workers, there is human capital formation to the extent of 2,000. ठीक है, 8 में कितने थे आपके, 10,000, 19 में कितने हो गए, 12,000. तो कितने का इंक्रीजमेंट हुआ, 2,000 का. ओके, सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन is the process of acquiring and increasing the number of persons who have the skill, education and experience which are essential for the economic and political development of a country. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है बेटा, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लोग हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स हैं जिनके पास कोई स्किल है, एजुकेशन है या एक्सपीरियंस है, उनका बढ़ना देश दुनिया में. ओके, दैट विल कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. लाइकवाइज एवरी ईयर अराउंड lakh और करोड्स ऑफ स्टूडेंट्स complete their study in the specific field and they applied for the job and they are getting job. Okay, so the number of persons who are engaged in the job or getting job, that all are the part of human capital formation. Okay, so you can note down this definition. Human capital formation is the process of acquiring and increasing the number of persons who have the skill, education and experience which are essential for economic development of a country. Okay,
इट इज़ बेटा डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब जो भी प्रोडक्शन हो गया वो हो जाएगा, और स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल जो हुआ वो क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को मेजर करता है। एंड फाइनेंशियल रेफर टू पेपर क्लेम्स अगेंस्ट फिजिकल कैपिटल, की जो भी पेपर क्लेम है आपका, दैट विल बी कॉल्ड financial capital. Okay, so till here is it clear? Any problem, anybody? No problem. Now see students, what are the determinants or sources of human capital formation? So there are various sources, beta, ways to add stock of human capital. First of all, the main source is expenditure on education. Okay, so what is expenditure means? Kharcha. Either higher amount of work expenditure spent by government on the education sector, then there will be a more human capital formation. Okay, expenditure on education is most effective way of raising productive workforce in the country. मतलब जितने ज़्यादा लोगों को हम एजुकेट करेंगे, उनको नॉलेज देंगे, ओके, तो उतने ही ज़्यादा लोग स्किल सीखेंगे, उतना ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा आएगा. तो देयरफॉर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल formation. Most families decide to include huge expenditure on education, even they have to raise loans. ठीक है, चाहे भले ही उनको लोन रेज करना. रीजन रिटर्न ऑन सच एक्सपेंडिचर आर सब्सटेंशली लार्ज, कि उनका जो रिटर्न होता है एजुकेशन का वो बहुत ही अच्छा होता है. मतलब जब जॉब लग गई आपकी, आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी, आप उस अच्छा रिटर्न कर सकते हो. सेकेंड वन इज़ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. अगर साउंड माइंड होगा, अच्छा बॉडी होगा, ठीक है, तो उससे आप ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं. ओके, तो पुरानी कथा है, अ साउंड माइंड इज अ साउंड बॉडी. मतलब जितना दिमाग आपका ज़्यादा होगा, आपकी जितनी हेल्थ अच्छी होगी, उतना ही आपका दिमाग अच्छा चलेगा. तो जिससे क्या होगा, ही एड्स मोर कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन टेंड्स टू राइज. और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देयर विल बी मोर एडिशन टू द GDP. एज वेल एज वी कैन इंक्रीज द स्किल ऑफ ह्यूमन कैपिटल बाई प्रोवाइडिंग जॉब ट्रेनिंग. ओके, क्या कर सकते हैं, जॉब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं. एज वेल एज वी कैन अरेंज स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स अदर देन फॉर्मल एजुकेशंस एट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल्स. द गवर्नमेंट एंड NGO ऑर्गेनाइज स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स to make them proficient in their work areas. Okay, so this enhances their productivity, serving as source of human capital formation. Okay, after that next point is migration. Migration means beta whenever the people move from one place to another, so it also fact as a addition to human capital formation. Okay, once we are having inactive skill, but other place there will be active skill. Okay, the next point is expenditure on information. Means information related to job market and education institutions offering specialized skill is an important determinant of skill formation. Okay, it enable people to actualize their productive potentials. Accordingly, expenditure on information is another determinant of human capital formation. Briefly, human capital formation is promoted by investment on education. ठीक है, तो जो ओवरऑल बात करी जाए तो जो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन है वो ओनली एंड ओनली आप अगर एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे तभी हो पाएगा. ठीक है, और हेल्थ जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपका, एंड हेल्थ दो चीज़ों पर सॉरी, और ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम कराइए, माइग्रेशन का प्रोसेस करिए, तो इस सभी से जो स्किल्ड वर्कर हैं अलग अलग लोकेशन में चले जाएंगे, एंड बाई विच द GDP ऑफ कंट्री कैन इंक्रीज. नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? बेटा इट विल हेल्प्स इन चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल इन्वायरमेंटल ऑफ ग्रोथ. ठीक है, मतलब आपका इन्वायरमेंट भी बढ़ जाए, अच्छा हो जाएगा, इमोशनल ग्रोथ हो जाएगी. ठीक है, जो इमोशनल इन्वायरमेंट होता है उससे क्या होता है, कंडक्टिव टू ग्रोथ एज टेंड टू एक्वायर ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड एंड एस्पिरेशन. ओके, हाई प्रोडक्टिविटी या फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल की हाई प्रोडक्टिविटी है. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल. ओके, स्पेशलाइज इंजीनियर एंड स्किल्ड वर्कर्स कैन सर्टनली हैंडल मशीन्स बेटर देन अदर. मतलब जो इंजीनियर होगा वो मशीन को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर लेगा एज़ कम्पेरिजन टू अदर्स हु आर नॉट हैविंग एक्सपीरियंस. या फिर किसी के पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो देन दे कैन ऑल्सो एज वेल एज इनोवेटिव स्किल.
तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या करता है, इनोवेशन लेकर के आता है, इससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेंड पर्सनल, ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ इनोवेशन इन द एरा ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सो जैसे जैसे इनोवेटिव स्किल आपकी आएगी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उतनी राइज होगी। सो टिल हेयर प्रिपेयर नोट्स। ओके, बाय बाय।